Good morning, students. Today I am going to teach you science subject. Chapter's name Air and Water. In this chapter, you will learn about humidity. Humidity means आर्द्रता अथवा नमी. Chapter topic name humidity. Humidity means आर्द्रता अथवा नमी होता है. We know that water vapor present in air. This comes from the water bodies like seas, oceans, rivers, evaporating in the air, and then it forms clouds, rains, snow means हिमपात और हेल मीन्स ओलावृष्टि. हम लोग जानते हैं कि जलवाष्प वायु में मौजूद रहती है. यह जल क्षेत्र के स्रोतों जैसे नदियों, महासागरों, सागरों से जल वाष्पित होकर वायु में पहुंचती है तथा बादल का निर्माण करती है, जिससे रेन वर्षा होती है. स्नो कभी कभी हिमपात बर्फ की वर्षा होती है, और हेल अथवा ओलावृष्टि छोटे छोटे पत्थर के गोले के रूप में वर्षा के रूप में होती है. उन दिनों में our body sweat do not dry and we feel sticky. उन दिनों हमारा शरीर चिपचिपा महसूस करता है एवं हमारे शरीर के स्वेट पसीना नहीं सूख पाता है. बिकॉज in those days, on those days, the humidity is high. Humidity is the amount of water vapor present in air is called humidity. You note it. The amount of water vapor present in the air is called water vapor, is called humidity. वायु में जलवाष्प की मौजूद मात्रा को ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता कहते हैं. नाउ टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मीन्स वायु के गुण. देयर आर some properties of air. First, air occupies a space. Air occupies a space. वायु जगह घेरती है. वायु स्थान घेरती है. We know that air occupies a space. We know that air occupies a space.
हम लोग जानते हैं कि वायु स्थान घेरती है। You learnt about do one activity. The activity is thus. वह क्रियाकलाप इस प्रकार है। You take a tray and you fill the water in it. एक ट्रे लेते हैं तथा इसमें पानी से भर देते हैं। Now take a glass and take a glass take a glass and enter upside in the tray. एक गिलास लेते हैं तथा इसे टब भरे हुए टब से पानी में सीधा स्ट्रेट अपसाइड नीचे की ओर जल में इंटर करते हैं। We looked at the water do not enter in the glass. Next, take the tray and full with water. Now you filled the glass and enter in the full of tray water. You looked at the bubbles out in the glass and water enters in the glass. This activity shows that air occupies a space. It shows that air occupies a space. Understand? Next, air has weight. वायु में भार होती है। We know that air has weight. हम लोग जानते हैं कि हवा में भार होती है। You understand it by one activity. आप इसे एक क्रियाकलाप द्वारा से भी समझ सकते हैं। Take 2 balloons and fill the air in balloons. Take 2 balloons and fill in the balloons with air. Now fill in the air in the balloon. Now we settle it in a stick. We settle it in a stick and settles with a strand. Settle with a strand.
हम लोग 2 गुब्बारा लेते हैं तथा उसे हवा से भरते हैं एवं एक सीधी छड़ी में उसे धागे से कसकर बांध देते हैं तथा उसे एक स्टैंड में कस देते हैं। You will look that both sides of balloons in equal standing। आप देखते हो कि उस स्टिक के दोनों तरफ का बैलून इक्वल स्थिति में है, समान स्थिति में है। After some times you prick the needle with in one balloon, then what you look। आप कुछ समय के बाद एक बैलून में नीडल से कांटे से चुभाते हैं, कुछ समय के बाद आप क्या देखते हैं? नाउ यू प्रिक यू लुक you look the stick is you look the stand is a stand's left side, a stick is falling down and left side of a stick is upside। What causes? The cause is very clear. The air is out of the left side's balloon and the right side balloon filled with air. So this causes the stick is unbalanced. This activity shows that air has weight. It shows that air has weight. It shows that air has weight। ये एक्टिविटी बताता है, पता चलता है इस एक्टिविटी से हवा में भार होती है। नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए, क्लियर कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। वायु जलने के लिए जरूरी है। वायु जलने में मदद करती है। थर्ड, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। Required for burning। Burning needs air। जलने के लिए वायु की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए यू डू वन एक्टिविटी। इसे समझने के लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। टेक 2 candles and settle on the table। टेक 2 candles and settle
settles. Take 2 candles and settles on the table. आप 2 मोमबत्ती लेते हैं एंड इसे टेबल पर सेटल करते हैं. दो मोमबत्ती लेते हैं तथा इसे टेबल पर सेटल करते हैं. नाउ बर्न इट. नाउ बर्न इट. अब इसे जला देते हैं. आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी कवर 1 कैंडल्स बाय ए ग्लास. एक मोमबत्ती को एक ग्लास से ढक देते हैं. After few seconds, we look the candles light go off. कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ढकी हुई मोमबत्ती की रोशनी गायब हो जाती है, बुझ जाती है. एंड सेकंड कैंडल इज बर्निंग. और दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है. दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर is required for burning. It shows that air is required for burning. Air is required for burning. And fourth properties of air. Fourth properties of air. Air exerts pressure. Air exerts pressure. वायु दबाव डालती है. क्या करती है? वायु दबाव डालती है. Air pressure around us. Air pressure exerts around us. वायु दाब हमारे चारों तरफ से दबाव डालती है. You understand it by activity. Take a glass and fill with water. And full with water. Take a glass and full with water. Now cover it with a cardboard. Now cover with a cardboard. A thin sheet of cardboard. एक पतली कार्डबोर्ड से
एक पतली कार्डबोर्ड से उस ग्लास को, पानी से भरे हुए ग्लास को कवर करते हैं। नाउ डाउन द ग्लास डाउन साइड, अब ग्लास को नीचे की ओर झुका देते हैं। Here it, the air do not enter in the glass between the cardboard and glass. ध्यान रखना है कि जल तथा कार्डबोर्ड के बीच में हवा इंटर नहीं करे। यह ध्यान रखना है कि कार्डबोर्ड तथा पानी से भरे हुए ग्लास के बीच में वायु इंटर नहीं करे। आफ्टर देन वी साइड आवर हैंड टू द ग्लास। कुछ समय के बाद ग्लास से अपने हाथ कार्डबोर्ड से अपने हाथ को खींच लेते हैं। व्हाट हैपेंस, तब क्या होता है? कार्डबोर्ड से हाथ को खींच लेते हैं, तब हम देखते हैं कि कार्डबोर्ड से हम अपने हाथ को खींच लेते हैं, तब हम देखते हैं कि कार्डबोर्ड पानी को ग्लास के साथ कवर किए हुए रहता है। इट शोज दैट एयर exerts pressure. Understand? It shows that air exerts pressure. It shows that air exerts pressure. Clarified? These are some properties of air. Now the topic, uses of air pressure in our daily life. Uses of air pressure in our daily life. We use some materials in which air pressure exerts. Air pressure exerts. हम लोग जानते हैं कि हम जो कुछ वस्तुएं यूज करते हैं जिसमें वायु दाब मौजूद रहती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सिरिंज, उदाहरण के लिए डॉक्टर सिरिंज यूज करता है जिसमें एयर प्रेशर मौजूद रहता है। डॉक्टर सिरिंज filling
air in the tube, filling air in the tube. साइकिल के ट्यूब में हवा भरने में एयर प्रेशर मौजूद होता है। थर्ड, ड्रिंकिंग स्ट्रा, ड्रिंकिंग स्ट्रा, for drinking cold drink, for drinking cold drinks, for drinking cold drinks, पेय पदार्थों को पीने में पाइप नली का प्रयोग करते हैं जिसमें एयर प्रेशर एग्जॉस्ट रहता है। इंक में स्याही भरने में, फिलिंग इंक इन द पेन, फिलिंग इंक इन द पेन, पेन में स्याही भरने में भी एयर प्रेशर अवेलेबल होता है। etc. We know that when we breathe, then air pressure is balancing in our body. जब हम लोग श्वास लेते हैं तब वायु दाब हमारे शरीर के अवस्था को संतुलन बनाए रखती है। These are some uses of air pressure in our daily life. So the time is last. Thank you.